Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Shifa Khan and welcome to my channel Dr. Shifa Lectures. And today this is my first video which I would like to share with you all. In today's video we are discussing about the subject which is called dental material sciences. Now let's start. What do you mean by dental material sciences? Basically, a dental material sciences is a science that deals with the development, composition, properties, manipulations, evolutions, and evaluations of dental materials are called dental material sciences. Acha, there are some groups of dental materials that you are seeing in that picture. First, we have inorganic salts. Next we have elastomers, polymer composites, polymers, metals and alloys, and ceramics. In inorganic salts we have dental cements. In dental cements we have gypsum products. Elastomers we have impression materials by which we can take impressions for denture preparation. And polymer composites we use polymer composites as a direct filling material. And polymers we have denture bases. Denture bases also use the direct filling materials. And in metals and metals and alloys, we use metals and alloys in components of a denture, for example wires, presses, and cast stations. And the final group is ceramics. We make porcelain crowns from ceramics. Now let's discuss some of the properties of dental material which the ideal dental material should have. The ideal dental material should be biocompatible. Biocompatible means it should not irritate our oral tissues, it should not make scars, it should not make burning sensation, and like that. The next, we are aesthetically acceptable. It should be durable, it should be mechanically stable, it should be dimensionally stable, it should be resistant to corrosion, it should be capable of irritating tissue repair, easy to manipulate, it should be tasteless, it should be odorless, cleanable, repairable, and cost effective. And this is the introduction of the subject, which is called dental material sciences. In today's video I am discussing with you all is about the topic which is called inorganic salts. In inorganic salts we have dental cements, and in that we have gypsum products. So in today's video I am discussing about the gypsum products. So let's start. This is a chart which I made for gypsum products. So let's start. First, we should have some introduction about the gypsum products. First, basically a gypsum product. Gypsum is a naturally occurring white powdery mineral which is with the name called calcium sulfate hemihydrate with the formula CaF4 Gypsum products used in dentistry are based on calcium sulfate hemihydrate CaF4 वो जिप्सम प्रोडक्ट्स जो हम डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं वो बेस करने चाहिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पे. Now uses. Let's talk about the uses of gypsum products. Basically, gypsum products are used in cast, dyes. Dye is basically a replica of a single teeth, which is called dye. Models and investments. Models basically replica of several teeth. Most popular materials for models and dyes are gypsum products. बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर जो मटेरियल हम अपनी डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं अपने मॉडल्स बनाने के लिए, स्टडी करने के लिए, उनके ऊपर डाइज बनाने के लिए, इम्प्रेशन के बाद जो हम डाई बनाते हैं और उसके बाद डेंचर बनता है, तो वो जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों के लिए वो मटेरियल है जिप्सम. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ISO standards 5 classes. So ISO has given a 5 classes of gypsum. The first we have the gypsum dental plaster impression. Second, dental plaster model. Third, dental stone dye model. Third, dental stone dye high expansion low strength. And fifth we have dental stone dye high strength high expansion. Now let's talk about the requirements of dental cast materials. Main requirements which the gypsum product have: it should be dimensionally stable, as you can see here, and the second, it should be adequate mechanical properties.
And here the mechanical properties, we use the word mechanical properties. Mechanical properties वो properties होती हैं कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट पर इसकी सेटिंग के बाद या ड्यूरिंग द वर्किंग हम जब भी कोई प्रेशर अप्लाई करें तो उस प्रेशर से वो कितनी देर तक अपने आप को रेजिस्ट कर सकता है कि वो डिफॉर्म ना हो। तो वो जो रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी है ना कि वो डिफॉर्मेशन ना हो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो जिप्सम प्रोडक्ट के पास रिक्वायरमेंट है हमारी डेंटल कास्ट मटेरियल जो कि जिप्सम प्रोडक्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट बेसिक ये है कि उसके पास एडिक्वेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और वो डायमेंशनली स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि सेटिंग के बाद और ड्यूरिंग द सेटिंग या हम जब भी काम करें उसके बाद उसकी डायमेंशन चेंज ना हो। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है अबाउट द डायमेंशनल चेंजेस इट शुड बी मिनिमल। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि डायमेंशन जब हम मटेरियल जब सेट हो जाता है इम्प्रेशन लेने के बाद या काम करने के बाद तो उसकी डायमेंशनल जो चेंजेस होती हैं यानी कि शेप चेंजेस होती है, उसकी लेंथ में कोई फ़र्क, तो वो बहुत मिनिमल होनी चाहिए। द मटेरियल शुड आइडियली बी फ्लूइड एट द टाइम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इनटू द इम्प्रेशन। बेसिकली fine details can be recorded. The material should be ideally fluid. Fluid means कि मटेरियल इतना फ्लूइड होना चाहिए, इतना फ्लूइड नहीं कि वो फ्लोएबल हो ईजीली, इतना कि जब हम इम्प्रेशन लें तो वो ईजिली लोड होकर इम्प्रेशन टेप और उससे इम्प्रेशन ले लिया जाए, जिसकी वजह से हम फाइन डिटेल्स ले सकते हैं। अगर वो हार्ड होगा तो जल्दी, अगर वो थोड़ा बहुत भी थिक होगा ना तो वो जल्दी हार्ड हो जाएगा और हम डिटेल्स नहीं ले पाएंगे, इसलिए मटेरियल शुड बी फ्लूइड होना चाहिए। कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द मॉडल एंड इम्प्रेशन शुड बी मिनिमल। कॉन्टैक्ट एंगल जो है हमारे पेशेंट के मुंह में जब हम इम्प्रेशन लेने के लिए ट्रे अंदर डालते हैं तो उसका जो कॉन्टैक्ट एंगल है ना वो ऐसा इतना कॉन्टैक्ट एंगल मिनिमल इसलिए कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट एंगल ज़्यादा नहीं होना चाहिए इम्प्रेशन और पेशेंट के मुंह के बीच में, यानी कि जब हम बाहर निकालें तो इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी ना करें ओरल टिश्यूज़ के साथ कि जब हम बाहर निकालें या तो पेशेंट को टीयर हो, उसके ओरल टिश्यूज़ टीयर हो या उसको कोई ट्रॉमा हो या फिर हमारा इम्प्रेशन ख़राब हो, तो कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो मिनिमल होना चाहिए। द मटेरियल शुड बी कंपैरेबल विद ऑल द अदर मटेरियल्स विद विच इट कॉन्टैक्ट्स, यानी इसके अंदर हमने जो मिलाया है मटेरियल और इसके अलावा हमारा पेशेंट के ओरल टिश्यूज़ है तो उसके साथ वो मटेरियल जो है वो कंपैरेबल होना चाहिए, यानी कि उन्हें कोई हार्म ना हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द composition of our gypsum products. Gypsum products used in dentistry are formed by driving off a part of a water crystallization from the calcium sulfate hemihydrate. Basically, the form of gypsum products that we are using in our dentistry is the calcium sulfate hemihydrate. पाउडर फॉर्म में जब हमारे पास आता है जिप्सम तो हमारे पास पाउडर फॉर्म में होता है जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, लेकिन जब हम उसको पानी के साथ मिलाकर उसको मैनिपुलेट करते हैं तो वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाता है। बेसिकली इट्स अ फार्मूला CaSO4.2H2O। ये इसकी इक्वेशन है कि जब हमने इसमें से पानी, ये पहले डाइहाइड्रेट था, जो फिर हमने वाटर निकाल लिया तो ये हेमीहाइड्रेट बन गया, दिस इज हेमीहाइड्रेट। ठीक है। जिप्सम प्रोडक्ट एप्लीकेशन यूज इन डेंटिस्ट्री इन्वॉल्व रिवर्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमने रिवर्स करना है, यानी कि हम इसमें वाटर मिलाएंगे तो फिर ये डाइहाइड्रेट बन जाएगा। तो जो यूज़ हम करते हैं इम्प्रेशन लेने के लिए, जब वो पाउडर फॉर्म में होगा तो वो हेमीहाइड्रेट होगा, लेकिन जब उसमें पानी मिला देंगे तो वो डाइहाइड्रेट बन जाएगा। तो उस डाइहाइड्रेट फॉर्म में हम पेशेंट का इम्प्रेशन लेने के लिए फ्लूइड वाले उसमें अभी हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किया, तो फ्लूइड नेचर में हम इम्प्रेशन लेते हैं। तो So now we have two forms of our gypsum. ठीक है, dental plaster which is also called beta hemihydrate and a dental stone which is also called alpha hemihydrate. अच्छा, now the dental plaster, how do we make a dental plaster? Dental plaster is basically produced by हीटिंग अ जिप्सम एट अबाउट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम उस जिप्सम को हीट करेंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो हमारा बन जाएगा बीटा हेमीहाइड्रेट, जिसके कुछ पार्टिकल्स इरेगुलर और पोरस पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, इसकी एक बात ये भी है कि हम डेंटल प्लास्टर्स को, वो जो ऑर्थोपीडिक फ्रैक्चर्स के अंदर जो प्लास्टर यूज़ होता है वो सेम होता है, बहुत ही इनडिस्टिंग्विशेबल है कि हम ईजिली इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये हमारा डेंटिस्ट्री वाला प्लास्टर है
या ये जो है वो जिप्सम वाला प्लास्टर है। तो इसलिए जब हम इसको हीट करेंगे उस जिप्सम प्लास्टर को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बीटा हेमीहाइड्रेट होगा जो हम यूज़ करते हैं अपने इम्प्रेशन लेने के लिए, जो इरेगुलर होगा और पोरस होगा। नाउ द नेक्स्ट वी हैव द डेंटल स्टोन विच इज़ कॉल्ड अल्फा हेमीहाइड्रेट. Alpha hemihydrate is produced by heating a gypsum at about 120 degrees centigrade in an autoclave under steam pressure. इस वाले बीटा हेमीहाइड्रेट को हम ऑटोक्लेव में स्टीम प्रेशर में नहीं हीट कर रहे थे, लेकिन इसमें हम ऑटोक्लेव में करेंगे। जब हम उसको और हीट और अंडर स्टीम प्रेशर करेंगे और टेम्परेचर बढ़ा के करेंगे तो वो एक मोर रेगुलर और लेस पोरस सा मटेरियल तैयार होगा, उसको हम कहते हैं डेंटल स्टोन। डेंटल स्टोन को हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने डेंटल प्लास्टर से डिस्टिंग्विश करने के लिए, यानी इसको डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, तो उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर एक डाई डाल दिया, लाइट येलो कलर का डाई डालते हैं। तो जो लाइट येलो वाला होता है वो डेंटल स्टोन होता है और जो वाइट वाला होता है वो डेंटल प्लास्टर होता है। इसकी एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम डेंटल प्लास्टर को हाथ में लेंगे तो वो थोड़ा मोटा, थोड़ा रेगुलर, थोड़ा पोरस पार्टिकल्स होंगे, लेकिन जब डेंटल स्टोन को लेंगे थोड़ा फाइन होगा। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेंटल स्टोन है। Now let's talk about the manipulations and setting characteristics of gypsum. ठीक है, plaster and stone powders are mixed with the water to produce a workable mix. हमें बेसिकली क्या करना होता है कि जब हम काम करना चाहते हैं या किसी चीज़ का, किसी की भी पेशेंट का इम्प्रेशन लेना चाहते हैं, तो इम्प्रेशन लेने के लिए हमें उन पाउडर को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स करना होता है। अब हमारी एक मैकैब एक बुक है, मैकैब है, मैं आपको बुक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो कौन कौन से बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं कि इस डेंटल मटेरियल साइंस को पढ़ने के लिए। अभी मैं ये एक टेबल है, टेबल 3.1 जो मैकैब में है। आई शो यू द टेबल, प्लीज़ वेट। दिस इज़ द बुक एंड यू कैन सी हियर दिस इज़ द टेबल। सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया, अभी थोड़ा सही हो जाएगा। This is the table which is called table 3.1 and the table show the water powder ratio of a stone and the plaster. The water powder ratio of our plaster is 0.5 milligrams and the stone we have 0.3 milligrams. यहाँ ये शो हो रहा है कि हमारा जो प्लास्टर है वो थोड़ा बड़े मोर पोरस और इरेगुलर पार्टिकल्स होते हैं, तो उसका वाटर पाउडर रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। और जो हमारा स्टोन है उसको वो थोड़े रेगुलर और लेस पोरस पार्टिकल्स होते हैं, वो थोड़ा फाइन होता है, तो उसका वाटर पाउडर रेशियो कम है, 0.3। ठीक है, चलें। उसके बाद है वाटर पाउडर रेशियो, ये है प्लास्टर का 0.5, 50 to 60 ml ऑफ वाटर जाएगा और 100 ग्राम ऑफ पाउडर जाएगा। एंड इन स्टोन वी हैव 0.3 water powder ratio and for 20 to 35 ml we have water and 100 grams of powder. अब हम बात करेंगे एयर पोरोसिटीज़ के बारे में। एयर पोरोसिटी में बी रिड्यूस्ड either by vibrating the mix of plaster. बेसिकली पहले हमने एक इक्वल अमाउंट और इक्वल वाटर पाउडर रेशियो के अंदर हमने उसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमें उसको टैप करना है, या तो हम वाइब्रेटर पे रख के कर सकते हैं, या हम मैनिपुलेशन की बात करें कि हाउ टू मैनिपुलेट to use the gypsum plaster or a dental stone. तो पहले हमने मिक्स कर लिया, वाटर पाउडर रेशियो की अकॉर्डिंग हमने ले लिया, पानी जितना लेना उतना और पाउडर जितना लेना उतना। और उसके बाद फिर हम वाइब्रेटर पे रखकर उसकी एयर पोरोसिटीज़ को, क्योंकि अगर उसके अंदर एयर पोरोसिटीज़ होंगी ना तो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कम होगी, इसलिए हमें उस एयर पोरोसिटीज़ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वाइब्रेटर पे रखेंगे ताकि नीचे जो मटेरियल में एयर चली गई है, जो पोरोसिटीज़ बन गई हैं, वो ख़त्म हो जाए। अगर आप हैंड मिक्सिंग करते हैं, वाइब्रेटर नहीं है तो हम हैंड मिक्सिंग भी करते हैं ज़्यादातर। अगर हैंड मिक्सिंग करते हैं तो हैंड मिक्सिंग करने के लिए हमें क्लीन स्क्रैच फ्री एक रबर और प्लास्टिक बोल लेना होगा, हैविंग अ डायमीटर एट द टॉप ऑफ अबाउट 130 mm। ठीक है, उसके बाद है दैन स्टिफ स्पैचुला से हमें राउंड एंड का स्पैचुला होता है, आगे से राउंड एज होती है उसका, वो स्पैचुला से हमें इसको मिक्स करना है। वाटर इज़ एडेड to a moist bowl and then add a powder slowly over 10 seconds and mix is allowed to soak for 20 seconds. ठीक है, now mixing time of that plaster or stone is 60 seconds. Let's talk about
लेट्स टॉक अबाउट द सेटिंग टाइम। मिक्सिंग टाइम हमने देख लिया 60 सेकेंड्स है। हमने पहले पानी के साथ पाउडर को डाल दिया, उसके बाद हमने उसको रबर बोल हमें चाहिए, एक मॉइस्ट रबर बोल। उसके बाद हमें उसको एक आगे से राउंड एज वाले ब्लेड से, राउंड एज वाले स्पैचुला से हमें इसको मिक्स करना है। इसका मिक्सिंग टाइम है 60 सेकेंड्स। उसके बाद है सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम में हम क्या करते हैं, सेटिंग टाइम में हमें 2 फेजेस मिलेंगे, एक इनिशियल सेटिंग टाइम एंड एक फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम हमें कब पता चलेगा कि इनिशियल सेटिंग टाइम है, वो हमें पता चलेगा जब मटेरियल डेवलप कर लेगा प्रॉपर्टी वो वीक सॉलिड एंड विल नॉट फ्लो रीडली। जब मटेरियल रीडली फ्लो नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा, और उस स्टेज के अंदर हम पॉसिबल है वो स्टेज कि हम उसको कार्व कर सकते हैं विद अ नाइफ। तो वो स्टेज है इनिशियल सेटिंग टाइम। और जो है उसके बाद हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है। जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वो हमें पता ऐसे चलेगी कि वो मटेरियल जो है वो इनफ हार्ड हो जाएगा, ठीक है, एंड इनफ हार्ड हो जाएगा और उसके ऊपर हम आसानी से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। व्हेन अ मॉडल और अ डाई इज हार्ड इनफ टू वर्क अपॉन, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड द फाइनल सेटिंग टाइम स्टेज। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिप्सम कैन बी मेजर्ड बाय एबिलिटी टू रेजिस्ट द पेनिट्रेशन बाय नीडल्स। कुछ गिलमोर नीडल्स हैं, हम उसकी सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये मटेरियल सेट हो गया है, इसका एक तरीका ये भी है, इसका एक मेथड है कि हाउ वी कैन मेजर द सेटिंग टाइम और सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट जिप्सम। तो गिलमोर गिलमोर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये तरीका बताया कि हम कुछ गिलमोर नीडल्स होती हैं, उन्होंने गिलमोर नीडल्स इन्वेंट करी और उन्होंने बताया कि इनिशियल सेटिंग टाइम में वो नीडल्स, आई शो यू द पिक्चर, वेट। Now this is a picture, the table figure number 3.3 and these are the Gilmore needles. बेसिकली इसमें हम कैसे देख सकते हैं कि जो एबिलिटी टू सपोर्ट, यानी कितनी एबिलिटी अगर वो छोटी वाली नीडल सपोर्ट कर पाएगा, ये वाली देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम एंड द मटेरियल हैज सफिशिएंट एबिलिटी टू एबल टू सपोर्ट द लाइटर नीडल्स, तो वो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है। लेकिन जब मटेरियल हैवी नीडल्स को सपोर्ट करवाएगा, इसका मतलब है कि वो फाइनल सेटिंग टाइम है। Now let's move on. Now we have a hygroscopic expansion. What do you mean by a term hygroscopic expansion? Hygroscopic expansion वो होती है कि it's a physical, basically hygroscopic expansion is basically a physical change that occurs when a material after setting, मटेरियल को जब हम मटेरियल सेट हो जाए, तो मटेरियल को सेट होने के बाद जब हम पानी के अंदर डालते हैं ना, तो उसके अंदर जो पोर्स होते हैं ना, वो पानी उन पोर्स में जाता है और मटेरियल थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है। तो उस एक्सपेंशन को हमने कहा हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। ये होती है क्योंकि कुछ पोर्स हमारी मटेरियल में सेटिंग के बाद रह जाते हैं, तो जब वो सेटिंग के बाद जब हम उसको पानी के अंदर डालते हैं और वो पोर्स की वजह से एक्सपेंड होता है, तो उसको हमने नाम दिया हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन का। नाउ द फैक्टर्स कंट्रोल द सेटिंग पॉइंट्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपना सेटिंग पॉइंट, सेटिंग टाइम। ये जो सेटिंग टाइम है ये कंट्रोल किया जा सकता है बाय मैन्युफैक्चरर्स से एंड बाय ऑपरेटर्स से। पहले हम पढ़ेंगे बाय मैन्युफैक्चरर्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सेटिंग टाइम को। बाय मैन्युफैक्चरर्स कैसे कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है वो उसके अंदर न्यूक्लिएटिंग एजेंट, जो न्यूक्लियर फॉर्मेशन होते हैं ना, उस न्यूक्लियर फॉर्मेशन की अब क्वांटिटी को कम कर दें उसके अंदर, तो उससे हम उसका सेटिंग टाइम कम कर सकते हैं कि क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूक्लियर होंगे वो न्यूक्लियर डिस्पर्स होंगे, वो एक्सपैंड होंगे और क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी और सेटिंग टाइम बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर कम होंगे तो उनके अंदर से एक्सपेंशन न्यूक्लियर जो है वो एक्सपैंड कम होंगे, क्रिस्टलाइजेशन कम होगी और सेटिंग टाइम खुद ही लो हो जाएगा, कम हो जाएगा सेटिंग टाइम। तो ये मैन्युफैक्चरर्स। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स कैसे कर सकते हैं कि उसमें कुछ एक्सेलरेटर्स और रिटार्डर्स डाल दिए कि हम उस प्लास्टर की सेटिंग टाइम को कंट्रोल कर सकें। एक्सेलरेटर्स वो जो सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करते हैं, बेसिकली पोटेशियम सल्फेट एज अ कॉमन एक्सेलरेटर जो हम यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जिप्सम के अंदर यूज़ करते हैं। एंड रिटार्डर्स वो होते हैं जो सेटिंग टाइम को कम कर दें। तो रिटार्डर्स हमने डाले हैं, बोरेक्स इज अ कॉमनली यूज रिटार्डर जो सेटिंग टाइम को कम, जिससे हम कम कर सकते हैं। Now the next we have the temperature. अब वो जो जो हम ये तो मैन्युफैक्चरर्स थे जो सेटिंग टाइम को कम कर सकते हैं बाय कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियरिंग एजेंट एंड बाय यूजिंग एक्सेलरेटर्स एंड रिटार्डर्स। एंड वो फैक्टर जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसको सेटिंग टाइम को कम करने के लिए, वो है टेम्परेचर और पाउडर रेशो और मिक्सिंग टाइम।
टेम्परेचर के अंदर क्या होता है कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाएगा, जल्दी जल्दी होने लगेगा, और लेकिन क्रिस्टलाइजेशन रिड्यूस हो जाएगी। हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो उसका जो सेटिंग का प्रोसेस है ना वो तो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन हो नहीं पाएगी पूरी तरीके से, तो सेटिंग हो नहीं पाएगी। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो हम उसके सेटिंग टाइम को कम कर सकते हैं, सेटिंग टाइम को बढ़ा सकते हैं, और सेटिंग के प्रोसेस को देर से कर सकते हैं कि वो मटेरियल देर से सेट हो। इसी तरह वाटर पावर रेशियो है। अगर वाटर पावर रेशियो को हम बहुत बढ़ा देंगे तो वाटर पावर रेशियो की वजह से क्रिस्टलाइजेशन जो होगी, क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होंगे, न्यूक्लियाई के अंदर से क्रिस्टल्स बनेंगे नहीं, और हमारा ऑब्वियसली ये क्या होगा कि हमारा जो मटेरियल है वो सेट होने में वक्त लेगा। नाउ वी हैव मिक्सिंग टाइम। सेटिंग एक्सेलरेट्स बाय ब्रेकिंग द डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर और वाटर पावर रेशियो जो है वो उसके साथ में क्या करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्रिस्टलाइजेशन डिक्रीज होगी, और हम वाटर पावर रेशियो को बढ़ाएंगे तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हम बात करें मिक्सिंग टाइम की, तो मिक्सिंग टाइम इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। मिक्सिंग टाइम में क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे ना उसको, जितना ज़्यादा जिप्सम को मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी वो क्या करेंगे हम कि एनहाइड्रेट जो डाइहाइड्रेट की जो ब्रेकिंग हम क्रिस्टल्स है ना, हम स्पैचुला से ना वो क्रिस्टल्स को तोड़ेंगे। हम जैसे ही मिक्सिंग करेंगे, ज़्यादा चलाते रहेंगे, तो जब हम उसको मिक्स कर रहे होंगे तो जो डाइहाइड्रेट के हमारे क्रिस्टल्स हैं हम उन क्रिस्टल्स को तोड़ेंगे। तो हम वो क्रिस्टल्स तोड़ेंगे तो न्यूक्लियर फॉर्म होंगे, तो मोर न्यूक्लियर जैसे फॉर्म होंगे ना वो इनिशिएट करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो हम न्यूक्लियर की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं मैं उसको स्टर करने से, मिक्स करने से मुसलसल। तो जितना ज़्यादा मिक्सिंग टाइम हम जितना मिक्स करेंगे उसको उतनी जल्दी क्रिस्टलाइजेशन होगी, और उतनी जल्दी मटेरियल जो है वो हमारा सेट होगा। नाउ द नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज़ एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज़ एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द जिप्सम डिपेंड्स ऑन पोरोसिटी एंड पोरोसिटी डिपेंड्स अपॉन and also the strength depends on water power ratio। बेसिकली इस पॉइंट में ये बताना चाह रहे हैं कि जिप्सम की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी पोरोसिटी पर डिपेंड करती है, और जो उसकी पोरोसिटी है और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो हमारे वाटर पावर रेशियो पर डिपेंड करती है। अगर हम कंपेयर करें हमारे डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन को, तो जो हमारे डेंटल प्लास्टर है वो उसकी स्ट्रेंथ कम है डेंटल स्टोन से। वो क्यों है? क्योंकि डेंटल स्टोन जो है वो लेस पोरस है और रेगुलर है, और डेंटल प्लास्टर जो है वो मोर पोरस है और इरेगुलर है। इसलिए और उसकी जो पोरोसिटी है वाटर पावर रेशियो, जितना ज़्यादा वाटर पावर रेशियो होगा जितना ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा पोरोसिटीज़ होंगी और उतनी ही कम स्ट्रेंथ होगी। तो डेंटल प्लास्टर के अंदर क्या होता है कि वाटर पावर रेशियो हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। हमने पढ़ा अभी ऊपर 0.5 हम रेशियो रखते हैं डेंटल प्लास्टर का। जब हम 0.5 रेशियो रखते हैं डेंटल प्लास्टर का तो उसके अंदर पोरोसिटीज़ ज़्यादा होती हैं। जब पोरोसिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन डेंटल स्टोन की हम बात करें तो उसका वाटर पावर रेशियो 0.3 होता है, उसमें पोरोसिटीज़ कम बनती हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एक ये इसका मेरिट भी हो गया और इसकी प्रॉपर्टी भी हो गई। स्ट्रेंथ ऑफ द डेंटल स्टोन हमने डिस्कस कर लिया कि मच स्ट्रॉन्गर, वेरी ब्रिटल मटेरियल आफ्टर सेटिंग। ये बहुत ब्रिटल होता है, बहुत ईजिली ब्रेक हो सकता है, नीचे गिर के भी टूटता है। तो जब हम मॉडल अपना निकालते हैं ना, हम इम्प्रेशन के बाद या हम कोई डाई कास्ट स्टडी कास्ट बना रहे हैं तो हम बहुत जेंटली इसको अपने हाथ में लेते हैं, और नीचे अगर वो गिरता है तो वो टूट जाता है फ़ौरन। तो ये बहुत ब्रिटल होता तो हार्ड है लेकिन ब्रिटल होता है। गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, अपनी डायमेंशन को मेंटेन रखता है। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सरफेस डिटेल्स, हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये क्वालिटी होती है कि हम पानी लगाकर यानी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसके सरफेस डिटेल को। अगर वो थोड़ा हार्ड हो गया है तो हम उसको हल्का सा पानी लगाएंगे ना तो वो मटेरियल वहाँ से हटने लगेगा, तो हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इसकी अच्छी क्वालिटी है। इनएक्सपेंसिव होता है और हम ईजी टू यूज़, हम ईजी वे में यूज़ कर सकते हैं। इनएक्सपेंसिव होता है, हमने पढ़ा तो है भी कि मैनिपुलेशन, हम ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं इसको। प्लास्टर इज स्लाइटली सोलेबल इन वाटर एंड, लेकिन इसकी एक बात ये होती है कि प्लास्टर जो है वो वाटर के अंदर, वो हम जो मैंने बताया कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसकी क्वालिटी इससे ये भी निकलती है कि प्लास्टर जो है वो वाटर के अंदर स्लाइटली सोलेबल होता है। अगर हम टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा देंगे ना, तो गर्म पानी में अगर हमने प्लास्टर डाल दिया तो प्लास्टर की लेयर मतलब वो घुलना शुरू हो जाएगा, उसकी लॉस होने लगेंगी, लेयर लॉस होने लगेगी, और वो लीविंग रफ सरफेस लीव करेगा पीछे अपना। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन, अब हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। डेंटल स्टोन जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू डेंटल प्लास्टर। अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, वो ड्यूरेबल होता है,
इजी टू यूज़ होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। सबसे पहली बात कि वो जो है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसलिए हम डेंटल प्लास्टर से ज़्यादा डेंटल स्टोन को प्रेफर करते हैं। इसलिए हमने डेंटल स्टोन हम क्यों यूज़ करते हैं? डेंटल स्टोन हम डेंचर कंस्ट्रक्शन के लिए डेंटल स्टोन, ताकि हमें फाइन डिटेल्स चाहिए, हमें उसकी स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए, हमें कंप्रेसिव उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, अच्छी है उसकी, अब वो ड्यूरेबल है और डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी है और वो इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो इसलिए हम डेंटल स्टोन ज़्यादा अच्छे, इसलिए हम डेंचर कंस्ट्रक्शन के लिए डेंटल स्टोन यूज़ करते हैं। कास्ट अलॉय क्राउन के लिए हम यूज़ करते हैं और डाई बनाने के लिए, एक सिंगल टूथ का रेप्लिका डाई बनाने के लिए हम डेंटल स्टोन को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है डेंटल प्लास्टर हम माउंटिंग मॉडल्स और स्टडी मॉडल्स के लिए फिर हम डेंटल प्लास्टर यूज़ करते हैं। That's all for today, and I hope you like my video. I'll meet you in the next video with another topic. Till then, take care and Allah Hafiz.